Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so hello everyone. Today we are going to see about the collision resolution technique. Prior to that, in the previous video, we have already gone through the various types of hashing technique. What do you mean by hash data structure? What is hash function? How we can create the hash table? What are the different types of hashing functions? And what are the different types of hashing techniques are available in the hashing data structure? All these are topics we have already learned. Today we will see about the collision resolution technique or collision handling mechanism. A most widely asked question in the university examination or in a Viva voice also. What are the different types of collision resolution technique? What are the different types of collision handling mechanisms are available in the data structure? So basically what it is a collision handling mechanism or collision resolution technique. Before to that, we have already gone through the various hashing technique. In that we have seen division method. In division method, what happens? One particular hash function is there. You have to apply that hash function on the data. Whatever data you want to store into the hash table, you have to apply that hash function on the hash data. Whatever remainder you are getting, whatever output you are getting of that particular function, it means that that is nothing but a index, or that is nothing but an index number, or because that is nothing but a location number where you have to store that data. So that things happen in the division method. After that, we have already seen about the mid square method. In mid square method, what happened? Mid square में क्या किया था हमने? In mid square method, जो भी data आपको hash table में store करना है, first of all, you have to find out the square of that particular number. Square निकालने के बाद according to the index size, whether you want a 1 bit index, whether you want a 2 bit index, whether you want a 3 bit index, depends on that. From left and right side से आप क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स को क्या करते हैं आप लोग डिलीट करते हो. बीच में जो भी बचता है, that is nothing but a location number where you want to store that element or the data. After that, we have gone to the digit folding methods or folding methods. In folding methods, there are two techniques: folding with reversing and folding without reversing. So folding without reversing यानी क्या होता है कि whatever data you want to store into the hash table, वो data को आप break करो. ठीक है, break कैसे करना है? You have to think how many digits you want in the index number. That means how many digits you require in location number. आपको आपका जो टेबल बना हुआ है उसमें आपका इंडेक्स साइज कितना है? आपको 1 बिट का इंडेक्स चाहिए, आपको 2 बिट का इंडेक्स चाहिए, आपको 3 बिट का इंडेक्स, दैट मींस एड्रेस चाहिए आपको. So according to that, you have to split that number or split that data. Suppose मुझे 2 डिजिट का एड्रेस चाहिए, so I have to split the whole number into two parts. दो के मैं ग्रुप्स बनाऊंगा और सारे ग्रुप्स को मैं फाइनली क्या करूंगा, ऐड करूंगा, and whatever value I will get, that is nothing but a location number where we are going to store that value. If the carry is generated, you have to skip that carry. Whatever carry is generated, आपको क्या करना है, carry को skip करना है, carry को consider नहीं करना है. That means a folding without reversing. हमने यहाँ पे कोई reversing नहीं किया, सिंपली जो एलिमेंट स्टोर करना था उसको डिवाइड कर लिया पार्ट में. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द your size of the index. ठीक है, and all the parts we have added together, and whatever the summation का आपको result मिला, that is nothing but a location number where you want to store the element or the data. Now folding with reversing, which is similar to the folding without reversing, only minor changes there. Whatever data you want to store into a hash table, you have to divide the data into the equal size. ओके, दैट मींस अगर आपको 2 डिजिट का एड्रेस चाहिए तो आपको जो भी डेटा हैश टेबल में डालना है उसको दो के ग्रुप्स में आप डिवाइड कर लो. डिवाइड करने के बाद जो लास्ट वाला पेयर होगा उसको आप पहले रिवर्स करो, बाद में सारे पेयर्स को ऐड करो, जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज नथिंग बट अ इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू स्टोर दैट डेटा. So here one example is there, 2 3 4 5 is the element. Suppose like 2 3 4 5 ये आपका एलिमेंट है, that element you want to store into the hash table. अगर मुझे इसको हैश टेबल में डालना है तो ये जो 2 3 4 5 जो डेटा है इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं तो कितना आएगा, 23 और 45. सो जो 45 यानी लास्ट पार्ट जो बना हुआ है उसको आप रिवर्स कर दो, 45 का रिवर्स होगा 54. सो देन यू हैव टू ऐड 23 प्लस 54 को आपको ऐड करना है, आपको मिला 77. 77 इज द लोकेशन नंबर वेयर यू वांट टू स्टोर द वैल्यू 2 3 4 5. That is the folding with reversing. So everybody got it. Hope everybody got it. कि division methods क्या होता है, digit folding methods क्या होता है, आपका mid square method क्या होता है. After that,
The next we have to see about a collision resolution technique. Basically, what is a collision? Whatever hashing techniques you have to apply, you have to use whatever hashing techniques. Suppose bit square method है आपका folding digit folding method से आपका division method से आप कोई भी hashing technique use करिएगा. So whenever you are going to store the data into the hash table, many times what happen, काफी बार ऐसे होता है कि जो multiple data is having the same result. It means that what? For example, suppose in case of a division method में आप क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शन h of k is equal to k mod n. डिवीजन मेथड में आप क्या करते हो, h of k is equal to k mod n. ये आपका हैश फंक्शन होता है. जो भी डेटा को आपको हैश टेबल में स्टोर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई दैट हैश फंक्शन ऑन द डेटा. वो हैश फंक्शन डेटा के ऊपर अप्लाई करते हो. डेटा के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो भी आपको रिमाइंडर मिलता है, दैट इज नथिंग बट अ लोकेशन नंबर वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा. इट मे हैपन द मोर देन वन डेटा हैविंग द सेम रिमाइंडर. हो सकता है कि दो से ज्यादा जो डेटा है उसका रिमाइंडर सेम है. सपोज 23 है, उसका भी रिमाइंडर 6 है. 45 है, उसका भी रिमाइंडर 6 है. दैट मींस 23 ने भी 6 में जाना है, 45 ने भी 6 में जाना है. सो दोनों में से एक कोई तो भी वैल्यू जाएगी 6 में, 6 लोकेशन नंबर पर. ठीक है, दैट मींस जो सबसे पहले जिसका रिमाइंडर 6 आया वो वैल्यू पहले आपका क्या करेगा, 6 नंबर की लोकेशन पर जाकर स्टोर हो जाएगा. बट 45 का भी रिमाइंडर 6 आया हुआ, कंसीडर इट जस्ट एग्जांपल. 45 का भी रिमाइंडर 6 आया हुआ, दैट मींस 6 से कहां जाना चाहिए, 6 से भी कहां पे जाना चाहिए, आपके लोकेशन नंबर 6 पे ही जाना चाहिए. लेकिन वहां पे ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है. जस्ट सी दिस एग्जांपल. नाउ सी दिस इज अ डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो भी आपका हैश फंक्शन होता है, सो वी हैव टू अप्लाई दैट हैश फंक्शन ऑन एवरी डेटा. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा दिया हुआ है 26 70 18 31 54 93, these are the data and this is the function k mod m. So k mod m is the function, we have to apply that function on every data. So what is the m? M is nothing but the size of the table. Many times size of the table is given. अगर नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, जितने भी नंबर ऑफ डेटा आइटम दिए उसको काउंट कर लो और उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है, नियरेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, उसको आप कंसीडर करेंगे व्हेन, जब आपको टेबल का साइज गिवन नहीं है तब. दैट मींस नाउ हियर m साइज इज सपोज 10. मान के चलते हैं कि यहाँ पे टेबल साइज अभी कितना दिया हुआ, 10 है. सो वी हैव टू यूज द m वैल्यू इज 10. यहाँ पे m का वैल्यू 10 दिया हुआ, कंसीडर इट m वैल्यू इज 10. ठीक है, बट इफ द 10 इज नॉट गिवन, टेबल साइज इज नॉट गिवन, सो व्हाट वी हैव टू यूज, हम m का वैल्यू क्या लेंगे, m का वैल्यू क्या लेंगे कि आपको जो भी डेटा दिया उसके टोटल नंबर ऑफ काउंट निकाल लीजिए. आपके पास कितना डेटा है, 26 70 18 31 54 93, तीनों तीन 6 डेटा है आपके पास. 6 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 7 आता है. सो आप m का वैल्यू क्या लोगे, 7. लेकिन 7 कब लोगे, जब आपके पास टेबल का साइज गिवन नहीं होगा तब लोगे. ठीक है, लेकिन अभी m साइज दिया हुआ है, सपोज 10 है, कंसीडर इट कि आपको टेबल साइज 10 दिया हुआ है, सो यू हैव टू यूज 10 ओनली. सो व्हाट वी हैव डन ओवर हियर, वी हैव टू अप्लाई दैट हैश फंक्शन ऑन एवरी डेटा. 26 पे हैश फंक्शन अप्लाई किया, 26 mod of 10, यू विल गेट वैल्यू 6. ठीक है, उसके बाद 6 आया है तो 6 में क्या स्टोर हो जाएगा, 26. देखिए 6 में आपका 26 स्टोर हो गया, यहाँ पे आपका 26 स्टोर हो गया. नाउ 70 mod 10 क्या है, 0. तो 0 में देखिए आपका 70 स्टोर हो गया. तो उसके बाद 18 mod of 10 क्या है, 8. तो 8 में आपका 18 स्टोर हो गया. आपने 31 mod of 1 सॉरी 31 mod of 10 1 आ गया, तो 1 में आपका यहाँ पे 31 चले गया. नाउ 54 mod of 4, 54 mod of 10 आंसर इज 4. सो आपके फोर्थ लोकेशन पे क्या चले गया, 54. यहाँ पे 54 आ गया. नाउ 93 mod of 10 दैट इज 3 आ गया. ठीक है, तो 3 में आपका 93 चले गया. तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक एक लोकेशन में आपका डेटा स्टोर कर दिया. नाउ सपोज इफ आई हैव अ वन मोर एलिमेंट, सपोज मेरे पास और एक एलिमेंट है, मान के चलते हैं आई हैव अ डेटा एलिमेंट 18 28 सपोज, मुझे अभी 28 फिर से स्टोर करना है. सो 28 mod of 10 करोगे, बड़े से आंसर मिलते हैं 28 mod of 10, यू विल गेट 8. आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा. यानी रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 8 रिमाइंडर आएगा. यानी इसका मतलब 28 पे कहाँ पे जाना चाहिए, 28 में कहाँ पे जाना चाहिए, 8 पे जाना चाहिए. अगर मैं 8 पे जाता हूँ तो 8 पे ऑलरेडी 18% है. 8 पे क्या है, ऑलरेडी 18% है. अगर मैं 18 के ऊपर फिर से 28 डाल देता हूँ तो मेरा 18 क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मेरा प्रीवियस डेटा लॉस हो जाएगा. दैट इज ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है कोलिजन. क्या बोला जाता है, कोलिजन. दैट मींस whenever we want to store the data into a particular location, but that location is already having some data, but
दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर लोकेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन डेटा, ठीक है, उस लोकेशन पे ऑलरेडी डेटा है। सो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है कोलिजन, ऐसे को बोला जाता है कोलिजन। सो टू रिमूव दैट कोलिजन, वो कोलिजन को रिमूव करने के लिए फिर क्या यूज किया जाता है, कोलिजन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स। कोलिजन को हैंडल करने के लिए कोलिजन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स यूज होते हैं। अब ये कोलिजन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स क्या है, तो कोलिजन हैंडलिंग मैकेनिज्म है कि अगर इफ द कोलिजन अकर, यानी आपको डेटा जहां पे स्टोर करना है, जिस लोकेशन पे स्टोर करना है, उस लोकेशन पे ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, सो दैट मींस कोलिजन। अगर कोलिजन अकर होता है, सो व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन टेक्निक वी हैव टू यूज। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक और कोलिजन हैंडलिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है। योर कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज द सेपरेट चेनिंग and the second one is the open addressing. Separate chaining and open addressing. So basically what means separate chaining or open addressing, ठीक है। ओपन हैशिंग, सेपरेट चेनिंग को हम लोग ओपन हैशिंग भी बोलते हैं, एंड ओपन एड्रेसिंग को हम लोग क्लोज हैशिंग बोलते हैं, ठीक है। दैट नेम इज बिटवीन, ठीक है। सो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है। द वेरी फर्स्ट इज सेपरेट चेनिंग एंड सेकंड वन इज ओपन एड्रेसिंग। सेपरेट चेनिंग होता है और ओपन एड्रेसिंग, ऐसे दो टेक्निक दिए हुए हैं। नाउ we'll see what do you mean by separate chaining and what do you mean by open addressing. We'll see one by one. So in case of open addressing, we are having three more technique. ये open addressing में तीन different techniques दिए हुए हैं। So वो है एक linear probing है, एक को बोला जाता है linear probing, दूसरा है quadratic probing और तीसरा है double hashing, ठीक है। और वो यहाँ पे separate chaining में कौन सा concept यूज होता है, chaining वाला concept है। I will tell you what do you mean by chaining. Okay. Now, so we'll see one by one how the collision handling mechanisms we will use. So see over here, यहाँ पे देखेंगे कि suppose linear probing यानी क्या होता है। linear probing in a simple language I will tell you, suppose if the collision occur, linear probing, the name itself represent linear, ठीक है। but before that we'll see the chaining क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। so basically chaining यानी क्या होता है। so suppose these are the data elements, ये आपके data elements हैं। suppose these are the data elements 31, 33, 77, 16, these are the data elements. Consider is hash table size is 10. Hash table size is 10. What question you will ask in the university exams? What type of question you will get in the examination? Some data is given to you. Some elements are given to you. And the question will be like this. Store the data into the hash table. Use the following collision handling mechanism to resolve the collision. Like linear probing, quadratic probing, double hashing, and chaining. And linear probing with step size. I will tell you what is the step size in the further slides. Okay. So now, basically what is chaining? आपको डेटा दिया हुआ, पहले उसको हैश टेबल में डालना है। हैश टेबल में डालते समय अगर कोलिजन आया तो आपको पहली टेक्निक कौन सी यूज करना है, चेनिंग। आपको चेनिंग यूज करना है। तो चेनिंग कैसे यूज होता है, ठीक है। नाउ सपोज consider this example 31, 33, 77 and 61, these are the elements you want to store in the hash table, and table size is 10. That means every time you have to apply the hash function. ये जो h of key is equal to k mod size, that means ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये फंक्शन आपको क्या करना है, ये की पे अप्लाई करना है। दैट मींस आप क्या लिखोगे, 31 mod of 10 करते हो तो व्हाट यू विल गेट 1। 31 mod of 10 करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी 31 में कहां पे जाना चाहिए, फर्स्ट लोकेशन में जाना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अभी चेनिंग है तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले टेबल बना दिया 0 to 9, टेबल बना दिया। टेबल साइज इज 10, टेबल का साइज कितना है, 10 है, ठीक है। 10 गिवन है इसलिए हमने 10 का टेबल बनाया। मान के चलते अगर ये टेबल का साइज गिवन नहीं है, ये टेबल का साइज दिया नहीं है आपको, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू यूज, आप काउंट कर लीजिएगा आपको हाउ मेनी नंबर्स यू हैव गॉट, कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 31, 33, 77 and 61, दैट मींस टोटल 4 नंबर्स आते हैं। सो 4 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5। सो आप टेबल का साइज क्या लोगे, 5। बट when the size is not given, at that time you have to take 5. But now here table size is already given, यहाँ पे table size already दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। So you have to use m size is 10. That means h of k is equal to k mod m, यानी जो फॉर्मूला है डिवीजन मेथड का,
तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, की मॉड ऑफ साइज, ठीक है। दैट मींस जो भी की है, ये 31, 33, 77, 61, ये जो की है इसके ऊपर आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है। हर एक की को आपको 10 से मॉड करना है। जो भी रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर जो आएगा दैट इज द लोकेशन नंबर वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा। दैट मींस अगर अगर मैं 31 मॉड ऑफ 10 करता हूँ, ये 31 को अगर मैं 10 से मॉड करता हूँ, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 1 यहाँ पे, यानी आपने आपने डेटा कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, 1। अभी आप चेनिंग यूज कर रहे हो, चेनिंग में हम लोग लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो जब चेनिंग हम लोग यूज कर रहे हैं, सो एवरी टाइम जब भी आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे कुछ डेटा स्टोर करना है, सो फॉर एवरी डेटा यू टू क्रिएट अ नोड, आपको एक नोड बनाना होता है। सो नोड यानी क्या होता है, नोड इज नथिंग बट जस्ट अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे आपको ये एक मेमोरी नोड कैसे बनाते हैं, ये ऐसा एक नोड है, ठीक है। सपोज ये नोड है, सो नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, नोड दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। सो दो पार्ट्स में कैसे, ये इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये पहला पार्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेटा होता है। फर्स्ट पार्ट में आपका क्या जाता है, डेटा जाता है, ठीक है। पहले पार्ट में आपका डेटा होता है, और ये जो सेकंड पार्ट है, यानी ये वाला जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या होता है, एड्रेस होता है। एड्रेस किसका होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है। दैट मींस जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है, फॉर दैट पर्टिकुलर लोकेशन यू नीड टू क्रिएट अ नोड। उस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपको एक नोड बनाना है, नोड क्रिएट करना है, और उस नोड में आपको डेटा डालना है। अभी नोड कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो नोड दिया हुआ नोड दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। व्हेन यू विल सी द लिंक लिस्ट एट दैट टाइम इट इज क्लियर हाउ वी विल क्रिएट अ नोड, बट टाइमिंग यू शुड नो हाउ द नोड स्ट्रक्चर इज। नोड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज कंटेन द डेटा, आपके पहले पार्ट में डेटा रहेगा, तो सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। किसका एड्रेस रहेगा, नेक्स्ट एलिमेंट का। अगर इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नल रहेगा। अगर नेक्स्ट एलिमेंट कुछ नहीं है, तो इसमें क्या रहेगा, नल रहेगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। नाउ सी, अभी 31 मॉड 10 करोगे तो आंसर इज 1। सो ये 1 पे जाना है, तो 1 के लिए देखिए यहाँ पे एक एरो लिखा है, एरो बनाया, यहाँ पे एक नोड बनाया, नोड में 31 डाल दिया, और यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस, ठीक है। अब ये पूरा एग्जांपल सॉल्व किया, इसलिए यहाँ पे 61 आपको दिखा है, यानी अभी यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ नहीं है। मान के चलते कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं, नल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज 33। सो 33 मॉड 10 करोगे, व्हाट आंसर यू विल गेट, 33 मॉड 10 यू विल गेट 3। तो 3 में क्या जाएगा आपका, 33 जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 में 33 चलेगा, ठीक है। उसके बाद 77 मॉड 10, 77 मॉड 10 करोगे तो आंसर इज 7। तो 7 में आपका 77 चलेगा। देखिए यहाँ पे एक नोड क्रिएट किया जिसमें 77 स्टोर कर दिया, और उसका एड्रेस फिर नल कर दिया, यहाँ पे नल लिख दिया, ठीक है। उसका 61 मॉड ऑफ 10, 61 मॉड ऑफ 10 अगर करते हो आप, ये जो 61 है, 61 मॉड ऑफ 10 करते हो, यू विल गेट आंसर 1। क्या मिला आपको, 1 मिला। सो भी ये किसमें जाना चाहिए, 1 पे जाना चाहिए। यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद पहले यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या, पहले 31 ऑलरेडी प्रेजेंट है, फिर इसका एड्रेस फील्ड नल है, नल है मतलब इसके बाद कुछ आया नहीं है, तो फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, एक नोड बनाना है। फिर से आपने यहाँ पे फिर क्या कर दिया, एक नोड बना दिया। ये जो नोड बना हुआ है, नोड बनाया, जिसमें आपने इसमें क्या कर दिया, 61 स्टोर कर दिया, और इस 61 का एड्रेस फिर आपने नल कर दिया। लेकिन ये जो नोड आपका 61 आया है, ये इसका एड्रेस आपने किसके पास दे दिया, इसके प्रीवियस नोड के पास, यानी यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया। दैट मींस जब आप इसको एक्सेस करोगे, ठीक है, तो कैसे एक्सेस करोगे, यू नो कि आपका ये जो पर्टिकुलर 61 है, ये किसमें जाना चाहिए, ये वन फर्स्ट लोकेशन में। तो आप फर्स्ट लोकेशन के पास गए, फिर आपको पता है कि यहाँ पे चेन है, तो चेन में आपका पहला नोड है 31, 31 में 61 है क्या, नहीं। फिर यहाँ पे इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस पे गए, इसका एड्रेस है, तो ये एड्रेस पे गए, एड्रेस पे देखा हमने 61 मिल गया, ठीक है। एंड फाइनली इट इज नल। सो एवरी टाइम whenever you want to store the data on that particular location, every time you have to create the node, and that node always contain the first part contains the data, and the second part contains the address of the next element. So likewise आपका चेन बनते जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी सपोज और आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे हो गया, यहाँ 33 दिया हुआ है, ठीक है। नाउ देयर इज 77, एक कोई भी एलिमेंट पकड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे 44, ठीक है। सपोज वन मोर एलिमेंट इज 44, 44 दिया हुआ है, ठीक है। तो 44 मॉड ऑफ 10 करोगे तो व्हाट इज आंसर, आंसर इज 4। सो आपका 4 में क्या होगा, यहाँ पे एक नोड बनेगा, ठीक है, जिसमें आप एक पार्ट में डेटा स्टोर करोगे, दूसरे पार्ट में एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपका डेटा रहेगा जो आपने 44 बोला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका 44 रहेगा, और यहाँ पे एड्रेस में आपका नल हो जाएगा, यहाँ पे एड्रेस में नल हो जाएगा, ठीक है। लाइक सपोज 53 है, वन मोर डेटा इज 53, 53 मॉड ऑफ 10 आंसर इज 3। तो 3 में क्या जाना चाहिए, 53 जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ पे 33 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर इसके एड्रेस पे क्या नल है, सो इसका नल निकाल लेंगे, यहाँ से फिर से हम लोग नोड बनाएंगे, यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसमें एक साइड में आपको क्या स्टोर करना है, डेटा दैट इज 53, और यहाँ पे आपका नल रहेगा, और ये जो प्रीवियस नोड है 33 का, इसके पास इसका एड्रेस रहेगा, ये वाले 53 का एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। सो लाइकवाइज वी हैव टू
store the data element in hash table using the chaining method. So chaining, it is one of the methods through which we are going to store the data if the collision is there. Collision occurs, so we have to use chaining. So chaining, it is one of the collision handling mechanisms. Now we'll see next linear probing. Very simple. चेनिंग में क्या किया कि जिस लोकेशन नंबर पर आपको डेटा स्टोर करना है उस लोकेशन पर आपने क्या किया, चेन क्रिएट करते गए, नोड बनाते गए, चेन क्रिएट करते गए. ठीक है. नाउ इन केस ऑफ linear probing, so linear probing, it is also very easy and very useful method in the collision handling mechanisms. So basically what is linear probing? The name itself represents linear. Linear means एक के बाद. Linear probing का मतलब क्या होता है? For example, suppose if you want to store a particular data, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने अभी एग्जांपल लिया हुआ, सो दीज आर द कीज, ये आपकी यहाँ पे कीज है, ठीक है, दैट इज 56, 64, 36, 71, दीज आर द कीज. एंड व्हाट इज द टेबल साइज? टेबल साइज इज गिवन 10. तो क्या कर दिया, 10 का टेबल बना दिया ऐसे, 0 to 9 एलिमेंट्स आर. ठीक है, 0 to 9 आपका एक अरे बन गया, एक टेबल बन गया. ठीक है. नाउ टेबल साइज इज 10, सो यू हैव टू अप्लाई द हैश फंक्शन h of k is equal to k mod n. So the first element is 56 mod 10. What answer you will get? 6. ठीक है, तो 6 पे क्या चलेगा आपका, देखिए 56 6 पे चलेगा, यहाँ पे आ गया 56. नाउ द सेकंड एलिमेंट इज 64. 64 mod of 10. 64 को अगर 10 से मॉड करते तो आंसर इज 4. ठीक है, तो 4 में क्या जाना चाहिए, 64. तो देखिए 4 में 64 चलेगा, यहाँ पे आपका 64 आ गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज 36. सो 36 mod of 10, सो आंसर इज 6. ठीक है, तो 6 में क्या जाना चाहिए, 36, यानी 36 आपको कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए. ठीक है, बट अगर 36 को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ तो 56 मेरा लॉस हो जाएगा. दैट मींस कोलिजन है, क्योंकि 6 पे मेरा 36 जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं 6 नंबर के लोकेशन पे जाता हूँ, सो देयर इज ऑलरेडी 56 एग्जिस्ट. उस लोकेशन नंबर पे ऑलरेडी 56 स्टोर्ड है. ठीक है, ऑलरेडी 56 स्टोर्ड है, उसके ऊपर मैं 36 डाल नहीं सकता. तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है कोलिजन. फिर ये कोलिजन हैंडलिंग के, कोलिजन रिमूव करने के लिए वी हैव टू यूज लीनियर प्रोबिंग. अभी लीनियर प्रोबिंग क्या बोलता है कि इफ द कोलिजन अगर वहां पे कोलिजन आता है तो आप उसके नीचे का लोकेशन देखो एम्प्टी है क्या. ठीक है, अगर एम्प्टी होगा तो वहां पे स्टोर करो, लेकिन ओबी फिल है तो उसके नीचे का लोकेशन देखो, ओबी फिल है उसके नीचे का लोकेशन देखो. ऐसे करते 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 आपको राउंड रॉबिन के थ्रू गोल घूमना है, सर्कुलर वे में. ठीक है, दैट मींस जैसे अभी आपने 36 यहाँ पे स्टोर करना था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 56 है, तो अभी इसके नीचे वाला एलिमेंट देखो, यहाँ पे ये लोकेशन फ्री है क्या, ये ऑलरेडी फ्री है, तो अभी यहाँ पे देखिए आपने 36 डाल दिया. गॉट इट. अगर ये भी फील होता, ये भी अगर इसमें भी कुछ डेटा होगा तो मैं इसके नीचे वाला लोकेशन देखूंगा. दैट मींस लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है कि जहाँ पे भी कोलिजन अकर हुआ, ठीक है, तो उसके नीचे वाला लोकेशन देखना, उसके नीचे वाला, उसके नीचे वाला, ऐसे एक एक सीक्वेंस में आपको लोकेशन चेक करते जाना है. जहाँ पे भी खाली मिलेगा वहां पे आपको डेटा फिल करना. गॉट इट. दैट मींस द लीनियर प्रोबिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट. सो नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. लीनियर प्रोबिंग में आप एक एक लोकेशन नीचे चेक करते हैं. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता है, इन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग मैंने, इट इज just like of linear probing, but little bit concept is different. Okay, quadratic probing, quadratic, that means always you have to check the next location in the form of quadratic, that is in the form of power of 2. ठीक है, it means that suppose जहां पे भी आपका कोलिजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करना था, कोई लोकेशन नंबर पे आपको डेटा स्टोर करना था, तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग क्या बोलता है. नाउ सी हियर, suppose these are the elements 90, 55, 70 and 49 and 67. These are the elements. Quadratic probing का फॉर्मूला क्या होता है, h of k is equal to h of k, ये आपका जो k एलिमेंट है, प्लस x into x. What means that x? ये x वैल्यू क्या होता है. ठीक है, where x is always 2 raised to the power. First of all, quadratic का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइम कोलिजन आया, so 2 raised to the power 0, और we can start with 2 raised to the power 1. 2 raised to the power 0 से स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट टाइम कोलिजन आया, 2 raised to the power 0 इज ऑलवेज 1. ठीक है, दैट मींस फर्स्ट लोकेशन चेक करें. अगेन कोलिजन आया, अगेन अगर कोलिजन आया 2 raised to the power 2, तो नीचे 4 लोकेशन चेक करना. अगेन कोलिजन आया तो 2 raised to the power 3 8, सो जहां पे कोलिजन आया वहां से 8 नंबर का लोकेशन देखना. दैट मींस जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे 67 मॉड ऑफ 10 करोगे तो आंसर इज 7, तो 7 पे आपने 67 डाल दिया. ठीक, उसके बाद क्या है 90,
90 mod of 10, आंसर इज 9, तो 9 में आपका क्या चलेगा, ठीक है, 90 mod of 10, 90 mod of 10 अगर करते हो तो आंसर इज 0, 0 पे आपका क्या चलेगा, यहाँ पे देखिए 0 पे आपका 90 चलेगा, 90 के ऊपर 10 से मॉड करते हो तो आंसर इज 0, सो 90 पे आपका 0 पे आपका 90 चलेगा। आफ्टर 55 mod of 10, 55 mod of 10 करते हो तो आंसर इज 5, तो 5 पे क्या चलेगा आपका 55 चलेगा। आफ्टर दैट 17 mod of 10, 17 mod of 10 करते हो तो 7 में क्या जाना चाहिए 17, तो 7 पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मैंने 70 स्टोर करना है 7 पे यहाँ पे, बट देयर इज ऑलरेडी 67, यहाँ पे 67 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 67 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, कोलिजन है, तो कोलिजन है तो क्वाड्रेटिक कोलिजन क्या बोलता है, फर्स्ट टाइम कोलिजन है उस पर्टिकुलर 17 नंबर के लिए, फर्स्ट टाइम कोलिजन है, तो फर्स्ट टाइम कोलिजन आया तो ऑलवेज यू हैव टू टेक 2 raised to the power 0 से स्टार्ट करना, ठीक है, जो भी एलिमेंट है, जो भी आपका की वैल्यू है, की वैल्यू कितना है आपका 7 है, 7 से आपको स्टार्ट करना है, 2 raised to the power 0 इज 1, 2 raised to the power 0 इज 1, दैट मींस जहां पे आपका कोलिजन आया था यहां से चेक करो, यहां से, यहां पे कोलिजन आया, यहां से 2 raised to the power 0 इज 1, सो इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट चेक करो, ये वाला खाली है क्या, खाली, ये ऑलरेडी खाली है, खाली है तो यहाँ पे आपने 17 डाल दिया, यहाँ पे आपने 17 डाल दिया, लेकिन मान के चलते यहाँ पे और कोई एलिमेंट है, तो सेकेंड टाइम कोलिजन है, सेकेंड टाइम कोलिजन है तो 2 raised to the power 1, पहले आपने 2 raised to the power 0 किया, अभी 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 1 इज 2, 2, तो आपका कोलिजन कहाँ पे हुआ था, ये मेन आपका लोकेशन जहाँ पे है, यहाँ पे आपका कोलिजन अकर हुआ था, ठीक है, तो आपने 2 raised to the power 0 किया तो 1 आंसर आया, तो जस्ट इसके नीचे का लोकेशन चेक किया, हाँ है क्या, नहीं है, फिल है ऑलरेडी, अगर है तो ऑलरेडी इन दिस केस ऑलरेडी एम्प्टी है तो वहां पे आपने 17 डाल दिया, लेकिन मान के चलते हैं कि वहां पे डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है फिर से, यानी सेकंड टाइम कोलिजन है, सेकंड टाइम कोलिजन है तो 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 1 इज 2, सो यहाँ से 7 से आप दो लोकेशन नीचे चेक करो, यहाँ से 7 से दो लोकेशन नीचे बोले तो एक 8 चेक कर लो, फिर 9 चेक कर लो, तो यहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे, अगर फ्री होगा तो, नहीं होगा तो यू हैव टू अगेन चेक 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 is 4, ठीक है, सो फिर यहाँ पे आपने एक्चुअली यहाँ पे डेटा जाना चाहिए 7 नंबर पे, फिर यहाँ से चौथा लोकेशन देखो 7 से, दैट इज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, अच्छा ये खाली मिला तो यहाँ पे डेटा डालो, अगर नहीं है 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 3 is 8, तो फिर जहां पे कोलिजन आया था वहां से 1 नंबर का लोकेशन आपको चेक करना है और वहां पे आपको वो डेटा स्टोर करेगा, सो लाइकवाइज इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोडिंग, ठीक है, जहां पे भी कोलिजन है सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 raised to the power 0 करो, आंसर आएगा 1, सो उसके जस्ट नीचे वाला लोकेशन देखो, अगर फ्री होगा तो वहां पे डाल दो, नहीं है तो 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 1 is 2, सो जहां पे कोलिजन आया था वहां से दो लोकेशन नीचे 1 2, वहां पे चेक करो, फ्री है तो डेटा डाल दो, नहीं है तो फिर से 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 is 4, जहां पे कोलिजन आना है उससे 4 लोकेशन नीचे जाओ, ठीक है, चौथा लोकेशन देखो कहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे आपको सर्कल में आप अगर सपोज यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, तो यहाँ से फिर से आपको राउंड रॉबिन चलाना है, देखो यहाँ से फिर से आपको ऊपर यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, चेक करना है, ठीक है, लाइकवाइज वी हैव टू solve the collision problem using the quadratic coding. Then the next one is double hashing. So basically what is a double hashing? There are different ways, different 2 to 3 methods we have to use a double hashing. Double hashing का मतलब क्या होता है कि you have a two function, two hash function. आपको कोई डेटा स्टोर करना है, ठीक है, तो आपको दो हैश फंक्शन दिए जाएंगे, ठीक है, दैट इज हैश फंक्शन 1 एंड हैश फंक्शन 2, यहाँ पे जैसे h1 और h2 दिया हुआ है, we got the two hash function h1 and h2, ठीक है, तो जो भी डेटा को आपको हैश टेबल में डालना है पहले आप h1 अप्लाई करो, ये हैश फंक्शन h1 अप्लाई करो, ठीक है, आपको रिमाइंडर मिलेगा और रिमाइंडर पे जाके आप वो वैल्यू को स्टोर करें, लेकिन मान के चलते कि आपने ये हैश फंक्शन अप्लाई किया और कोलिजन आ गया, ये हैश फंक्शन अप्लाई किया और कोलिजन आ गया, ठीक है, जब कोलिजन आता है तो यू हैव टू यूज द सेकंड हैश फंक्शन, आपको क्या यूज करना है, सेकंड हैश फंक्शन यूज करना है, यानी पहला हैश फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, आप डेटा डालने की कोशिश कर रहे हो लेकिन वहां पे ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, तो फिर ऐसे समय पे क्या करेंगे हम लोग, सो ऐसे समय पे आपको क्या करना है कि दूसरा हैश फंक्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है, डबल हैशिंग में आपको दूसरा हैश फंक्शन दिया जाएगा, सो यू हैव टू यूज अ सेकंड हैश फंक्शन, सेकंड हैश फंक्शन आपको यूज करना है और सेकंड हैश फंक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, उस दैट इज नथिंग बट अ लोकेशन नंबर वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा, यानी पहला हैश फंक्शन अप्लाई किया, ठीक है, अगर कोलिजन नहीं आ रहा है तो आप डेटा डाल दो, लेकिन कोलिजन अगर आता है तो आप फिर ये सेकंड वाला हैश फंक्शन अप्लाई करो, ये वाला हैश फंक्शन अप्लाई करो, तो इससे भी आपको एक वैल्यू मिलेगा, तो वैल्यू पे जाओ, वहां पे आपको क्या करना है, डेटा पुट करना है, लेकिन सेकंड वाला भी हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद कोलिजन आता है तो यू हैव टू यूज अ लीनियर प्रोबिंग,
है ना, जो नीचे वाला लोकेशन चेक करते रहो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डबल हैशिंग कर सकते हो। नाउ यू कैन सी हियर जो सेकंड हैश फंक्शन है, इट इज वेरी प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। हैश फंक्शन आपको कोई भी कैसे भी मिल सकता है, ठीक है। सो मेनी इन मेनी रूट्स व्हाट दे हैव मेंशन कि डबल हैशिंग अगर यूज करना है, ठीक है, जस्ट यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट हैश फंक्शन। कोलिजन नहीं आया तो डेटा फर्स्ट हैश फंक्शन का जो वैल्यू आया है उससे स्टोर करो। लेकिन अगर पहला हैश फंक्शन फर्स्ट हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद कोलिजन अगर होता है, इट मींस दैट यू हैव टू अप्लाई द सेकंड हैश फंक्शन। आपको एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू पे आप डेटा स्टोर करो, ठीक है। दैट इज द सेम प्रैक्टिस। दिस अनदर मेथड इज, पहला हैश फंक्शन अप्लाई करो, ये फर्स्ट वाला हैश फंक्शन अप्लाई करो सेम वैल्यू पे, आपको एक कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा। सेकंड हैश फंक्शन अप्लाई करो, आपको एक कुछ तो भी वैल्यू मिलेगा। ये दोनों वैल्यू को आप ऐड करो, ये दोनों वैल्यू को आप ऐड करो। ऐड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा, जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आपको मिलेगा, दैट इज नथिंग बट लोकेशन नंबर। ऐसा भी कर सकते हैं। फर्स्ट हैश फंक्शन अप्लाई किया, वैल्यू पे आपको रिमाइंडर मिला। सेकंड हैश फंक्शन अप्लाई किया, रिमाइंडर मिला। दोनों रिमाइंडर्स को ऐड किया, थर्ड वैल्यू मिला, रिजल्ट मिला। सो जो तीसरा वैल्यू आएगा, दैट इज नथिंग बट लोकेशन नंबर वेयर यू हैव टू स्टोर द वैल्यू। एक ये टेक्निक हो सकता है, ठीक है। अनदर वन इज जस्ट ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल में दिया हुआ है, यू कैन सी दिस वन यहाँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहला हैश फंक्शन दिया हुआ है, these are the values 67 90 55 can be, these are the values। ये वैल्यूज दी 67 90 55 17 14 ये वैल्यूज दी हुई है। सो यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट हैश फंक्शन। आपको पहला हैश फंक्शन अप्लाई करना है और ये जो आपका टेबल बना है उसमें वैल्यूज डालना है। कोलिजन अगर आता है, तो आपका सेकंड हैश फंक्शन कौन सा है, देखिए ये सेकंड हैश फंक्शन है, सेकंड हैश फंक्शन है। अगर कोलिजन आया तो आप सेकंड हैश फंक्शन अप्लाई करो। सेकंड हैश फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, वहां पे आपको ये पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करना है। नाउ इन दिस केस देखिए 67 मोड ऑफ 10 करते हैं तो आंसर इज 7। तो 67 आपका 67 आपका 7 में चला गया। 90 मोड ऑफ 10 करते हो तो 0 आएगा, तो 0 90 पे 90 0 में चला गया। 55 मोड ऑफ 10 करते हो तो 55 मोड ऑफ 10 करते हो 5 तो 5 आपका 55 में 55 आपका 5 लोकेशन पे चलेगा। देन 17 मोड ऑफ 10 करते हो तो आंसर इज 7। तो 7 पे क्या जाना चाहिए आपका 17। बट 17 अगर मैं 7 लोकेशन पे डालता हूँ तो ऑलरेडी 67 प्रेजेंट है, कोलिजन है। कोलिजन है तो हमें डबल हैशिंग यूज करना है। डबल हैशिंग का फंक्शन क्या है, ये। तो डबल हैशिंग का फंक्शन अप्लाई करता हूँ, h2 is equal to 17। दैट मींस डबल हैशिंग का फंक्शन है h2 is equal to p। p क्या है आपका, ठीक है, p is the prime number, ठीक है। यहाँ पे लिखा है here p minus key mode of p। here p is the prime number which should be taken smaller than the hash table so that the value of p will be 7। now here the value of table size is 10। टेबल साइज कितना दिया हुआ 10। 10 से जो नियरेस्ट आपका जो प्राइम नंबर है कौन सा है, 7 है, ठीक है। 0 to 9, 9 के पहले जो आता है प्राइम नंबर 7 आता है। सो यू हैव टू यूज द प्राइम नंबर 7, ठीक है। सो हियर यू हैव टू यूज द प्राइम नंबर कौन से, ठीक है। देयर आर 2-3 मेथड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मोर देन 2-3 मेथड्स आर देयर, यू कैन यूज एनी वन मेथड, ठीक है। तो आपने 7 यूज किया तो 7 माइनस 17 मॉड ऑफ 7, ठीक है। सो इसका आंसर आया 4, ठीक है। सो ये जो 4 का आया है, ठीक है, तो ये फोर्थ लोकेशन पे आपको क्या स्टोर करना है, फोर्थ लोकेशन पे आपको क्या स्टोर करना है 70। लेकिन कहां से फोर्थ लोकेशन आएगा आपका, ठीक है, जहां पे आपका कोलिजन आया वहां से आपका फोर्थ लोकेशन। दैट मींस देखिए आपका कोलिजन यहाँ पे आया था, ठीक है, यहाँ यानी 6 पे, तो सॉरी 7 पे यहाँ पे कोलिजन आया था आपका, यहाँ से फोर्थ लोकेशन। सो यहाँ से फोर्थ लोकेशन बोले तो ये 8-1 हो गया, 9-2 हो गया, 0-3 हो गया और ये 1-4 हो गया, ठीक है। दैट मींस 17 कहाँ पे आया, यहाँ पे। यानी आपने क्या किया, सर्कुलरली घूमा, यानी आप यहाँ तक रीड करते करते आते तो यहाँ से फिर से आप ऊपर जा सकते हैं। यानी अगर ये 9 है, ठीक है, तो इसको आप क्या कंसीडर करोगे, 0 को 10 11 12 ऐसा भी बोल सकते हो। गॉट इट। यानी 17 में 7 पे जाना चाहिए था, लेकिन कोलिजन है तो डबल हैशिंग किया, डबल हैशिंग का आंसर है 4। तो यहाँ से 4 लोकेशन चौथे लोकेशन पे जाना है, चौथे लोकेशन पे आपको जंप करना है, यानी 7 से लेके 4, यानी 7 पे है हम लोग, यहाँ पे 7 पे है इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। यहाँ से चौथा लोकेशन कौन सा आएगा, ये फर्स्ट लोकेशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ लोकेशन पे हमने क्या स्टोर कर दिया, फोर्थ लोकेशन पे हमने